Hello students, welcome to Dolphin PG Institute of Biomedical and Natural Sciences, Manduvara, Dehradun. Myself, Dr. Varsha Parcha, Professor, Department of Chemistry and Pharmaceutical Chemistry, DIBNS. I'll be taking your module on UV visible spectroscopy under the paper Spectroscopy in Solid States for MSc Chemistry 3rd semester, Hemvati Nandan Bhoguna University, Srinagar, Garhwal. So let's begin with our module. That's the first module on the spectroscopy, that is UV and visible spectroscopy. So before we go into detail on UV and visible spectroscopy, let's have an insight about spectroscopy. What is the principle behind it? What is electromagnetic spectrum? Some of the common terms what will be coming associated with it, and then we'll be having a detailed discussion on ultraviolet and visible spectroscopy, and main it is ultraviolet spectroscopy, which is part of your curriculum. So let's begin with our topic, that is spectroscopy. I know by now you are in the third semester, you will be well versed with the term spectroscopy, but to come into insight of the your topic, that's UV visible spectroscopy, so it is better that we go from very beginning. That's from where we have started or learned what is a spectroscopy. So spectroscopy, it's a branch of science that deals with the study of interaction of matter with light, or it is a branch of the science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Now to understand is in a very simple manner is that it deals with interaction of matter with light, or you can say electromagnetic spectrum. हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, कितना लाइट उसमें पड़ती है, कैसा वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा, क्या रिएक्शन होगा, इस तरह की इंटरेक्शंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेक्शन है इन सिंपलर फॉर्म, सिंपलर मैनर हम बोल सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस विद लाइट, और लाइट का भी हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है क्या, किसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, हम किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Electromagnetic radiation consists of a discrete packages of energy which are called photons. छोटे छोटे बंडल्स हैं, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं. कि किसके डिसक्रीट पैकेजेस ऑफ एनर्जी, छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं. अब ये फोटॉन क्या है, दीज फोटॉन कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से E and an oscillating magnetic field say M, which are perpendicular to each other. Let's see in the another slide. देखो, this is a source of light and it has got two components. One component is a magnetic field and another is electric field. So both are perpendicular to each other. So this is photon. A photon behaves as like a small packet of energy which behaves as a wave, which has got two factors. One is magnetic field and another is your electric field, and both the fields are perpendicular to each other. You can say this is a plane, this is a plane, this is a wave, and this is magnetic field and this is your electric field. Yes. Now, there will be the few terms which we come in across. I told you in the beginning also, because whenever we'll be talking about UV, IR, even NMR, so here we always find out whether we'll be discussing either we will be using the term frequency or wavelength, wave number, nanometers, and all about this. A little bit brief insight into it. So what is a frequency and what is a wavelength and what is the energy which is associated, because we have an energy of a photon which will have some relation with the frequency or with the wavelength. ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो तुम्हें आपको पता होनी चाहिए, मुझे मालूम है आपको पता भी होंगी, बट फिर भी एक जानने के लिए हमें बिगिन करना है, हमें इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशंस ऑसिलेट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर जो कितने टाइम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, वापस उसी पॉइंट पे आता है. जैसे कि अब हम कहें ये बस की फ्रीक्वेंसी इस रूट पे वंस इन ए वीक है, मतलब वो एक बार टारगेट को वीक में एक बार टच करता, तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशंस ऑसिलेट इन 1 सेकेंड. और इसका जो यूनिट है उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, और 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकेंड. दूसरी टर्म बड़ी कॉमन, वेवलेंथ. It is the distance between two nearest parts of the wave in the same phase. As I told you,
these photons they behave as a wave. वेव के अंदर क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ, अब देखो ध्यान से। वेव के अंदर क्या है, ये वेव है ना, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव है। वेव का मतलब होता है उसमें कुछ एरिया पीक पे जाएगा, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर है ना, उसको वेव बोलते हैं। तो कॉमन सी बात है। इन दो हाईएस्ट पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज वेव। हम बोलते हैं ये इसकी वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इसकी वेवलेंथ है, क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो ये है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम पीक बोलते हैं, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस लाइन के नीचे की तरफ है, इसको क्रेस्ट। इन दोनों की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस को, ये नीचे की तरफ से हाइट है, ये ऊपर की तरफ से हाइट है, सो दिस इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। और ये विद ये जो इस लाइन से जिसमें भी ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, उसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एक रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन ऑसिलेट्स इन 1 सेकेंड, और इसका वेवलेंथ का और इसके बीच में एक रिलेशन है, और उसको हम बोलते हैं C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो इट विल बिकम C अपॉन लेमडा, राइट। अब फोटोन के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और वो उसका जो रिलेशन है उसको बोलते हैं H। फ्रीक्वेंसी मींस कितनी एनर्जी रिलेटेड है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी, और साथ में ये H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम V को रिप्लेस कर सकते हैं बाय C अपॉन लेमडा। तो लेमडा उसकी वेवलेंथ, C हो गई उसकी वेलोसिटी, और H हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन हो, उसका रिलेशन, उसके साथ जो एनर्जी, जो उसके फोटॉन्स है, उसकी एनर्जी हमेशा विल बी एच न्यू। और एच न्यू या वी हम बोले, चलो हम उसको एच सी अपॉन लेमडा में भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक स्पेक्ट्रम। ये मैंने बताया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या रेडिएशन है, इसमें खाली एक नहीं है, यूवी लाइट या IR लाइट है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी रेज है, और हर रे का हम इस्तेमाल करते हैं। सो हम जो ये सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी यही बताता है कि इसका हर पार्ट का कैसे ऑप्टिमल यूज हुआ है, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन की, हमें पता चला ये लाइट है, ये इसका ये काम है, ये मॉलिक्यूल को ये कर सकती है, बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री, हमने उसकी एप्लीकेशंस कर दी। तो क्या बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, उसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, उसमें गामा रेज होती है, उसमें एक्सरेज होती, उसमें अल्ट्रावायलेट है, उसमें विजिबल है, उसमें IR है, उसमें माइक्रोवेव है, रेडियो है, जो मच इंपॉर्टेंस की, इन सब का यूज है। वी मेक यूज ऑफ ईच एंड हमने इसकी एप्लीकेशन निकालते। एक्सरेज जानते हो, हमें एक्सरे करा और हमें बॉडी का स्ट्रक्चर में अंदर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मेन फ्रैक्चर है, बोन टूटी है, बोन बड़ी है, बोन छोटी है, एवरीथिंग हमारे एक्सरे उसमें से पास कर सकती है। तो पहले हम एक्सरे आई कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो हमें इसका रेंज पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो स्लाइड है, इसमें आपको सब पता चल रहा है। यहाँ हमने वेवलेंथ्स को लिखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ एनर्जी है। वेवलेंथ्स को मीटर्स में भी दिया है, सेंटीमीटर्स में भी दिया है, नैनोमीटर्स में भी दिया है। तो नैनोमीटर्स में देखो 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁹ तक का रेंज है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और गामा रेज को कवर करता है। ऐसे ही अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो 10⁻⁻11 टू 10⁻³ सेंटीमीटर्स तक का पूरा रेंज है, और अगर हम मीटर्स में देखें तो 10⁻⁻13 टू 10 तक हमारे पास ये मीटर्स में रेंज है। तो हम जब ये पढ़ना चाहेंगे, अगर हमने किसी को रेडिएट करना है तो हमें गामा रेज से करना है, तो हमें कौन सी रेंज लेनी है, कितने नैनोमीटर्स की, 10⁻⁻⁴ से 10⁻² नैनोमीटर्स की, है ना। और हमें पता है ये इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ की एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे, आपके पास पीछे मैंने रिलेशन दिया है, इसीलिए ये सारी चीजें थी, सो दैट यू कम टू नो व्हाट इज द वे। सो जनरली जब हम यूवी पढ़ते हैं तो यूवी में हम ज्यादातर हम नैनोमीटर्स में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं 200 से लेकर 400 नैनोमीटर है, या 100 से लेकर 600 नैनोमीटर है, 200 से लेकर 800 का नैनोमीटर है, 400 से 800 नैनोमीटर हम विजिबल रेंज को लेते हैं। तो ये सारी रेंजेस क्या बताती है, उसकी वेवलेंथ बताती है। इस वेवलेंथ से लेकर इस वेवलेंथ तक का पार्ट जो है वो सिर्फ यूवी का पार्ट है। हमारा इतना बड़ा लाइट का स्पेक्ट्रम आ रहा है, उसमें इतना पार्ट, इस वेवलेंथ का पार्ट यूवी का है, इतना पार्ट गामा का है, इतना पार्ट एक्सरे का है। और इसका अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ यूवी को इरेडिएट पास करे, तो बाकी को हम फिल्टर करके सिर्फ यूवी से
पास करेंगे, उसमें उसके ऊपर यूवी का इंटरेक्शन कराएंगे। हम चाहते हैं आईआर से इंटरेक्ट कराना, तो बाकी को फिल्टर करके सिर्फ आईआर की रेंज वाला जो पार्ट है, वेवलेंथ वाला पार्ट है, उससे इंटरेक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें पता है आईआर क्या चेंजेस लाएगा, यूवी क्या चेंजेस लाएगा, एंड सो ऑन। सो ये कंप्लीट दे रखा है, पूरा अच्छा ग्राफ बना रखा है इसमें, मतलब टेबल है जिसमें हमें सब इसकी कैलकुलेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस चीज का बना है और किस किस रेंज में इसमें। एक सिंपल व्हाइट लाइट की बात करते हैं, सपोज विजिबल वाले की बात करते हैं, तो यू नो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, जिसको हम रेनबो बोलते हैं, लेकिन इसकी कितनी कितनी वेवलेंथ है, देखो वायलेट मैंने अभी आपको बताया 400 से लेकर 800, 400 टू 800 नैनोमीटर से विजिबल रेंज। तो आप देख सकते हो वॉयलेट, इसके अंदर भी जो वॉयलेट वाला है उसकी 400 से 420 नैनोमीटर है, लेकिन जब हम इंडिगो में चलते हैं तो उसकी वैल्यू 420 से 440 हो जाती है, एंड सो ऑन। अब देखोगे हाईएस्ट वेवलेंथ 620 से 780 नैनोमीटर्स की तरफ है। बाद में जब आप यूवी देखोगे, यूवी पढ़ोगे, तो हम उसमें रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वो क्या मतलब होता है, बिकॉज हाई टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ या टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो हमारे पास स्लाइड है, ये हमें यही बताती है किस रेंज से किस रेंज तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम चलते हैं आगे, प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, प्रिंसिपल के मैंने बोला हम बिगनिंग कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या है कि हम क्या देखते हैं इसमें, इसका प्रिंसिपल क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल व्हिच कंटेन्स, सैंपल क्या होना चाहिए, किस चीज का, क्या चीज है सैंपल, एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, और मेजरमेंट किसका है, स्पेक्ट्रम का। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशंस बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल या एटम पे पास करी, और कितनी वो एब्जॉर्ब हुई या एमिट हुई, उसका ग्राफ। किसके वर्सेस किसके, स्पेक्ट्रम किसका ग्राफ है, इट्स अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड रेडिएशंस बाय द सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेव, या तो वेवलेंथ में ले सकते हैं या फ्रीक्वेंसी में ले सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर नहीं कोई वर्ड है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऐसा डिजाइन किया है जो कि हमारे स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है। अगर हम यूवी यूज कर रहे हैं, यूवी लाइट यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर हम आईआर करेंगे तो हम बोलेंगे आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का एक कॉमन नेम है, जो हमारा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हमारे को स्पेक्ट्रम देता है, किसका, जो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशंस है बाय द सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वेव। दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स जो काम करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, आप भी सोच सकते हो, या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी या तो रेडिएशन इमिट होगी। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब है हमारे पास ये सैंपल है, सो सपोज दिस इज अ सैंपल एंड वी आर पासिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन है, से मैंने एक्स वैल्यू की रेडिएशन, एक्स वेवलेंथ की रेडिएशन, उसके साथ जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है मैंने उसमें पास करी इस सैंपल के साथ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, क्या होगा, ये मैटर के पास आई तो इसने अब किया क्या, क्या मैटर इसमें से एनर्जी को ले रहा है, क्या मैटर इसमें से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या होगा, ये रेडिएशन से मैंने एक्स डाली और उसका कुछ पार्ट उस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने कहा मैं इसकी ये रेडिएशन अपने पास रखता हूँ, थोड़ा रख दिया, और बाहर जो आया उसको देखा, तो जो एब्जॉर्ब हुई, तो अब हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स एमिट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कंसर्न है विद द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाउ मच रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। इसका तरीका है फाइंड आउट करने का, कितनी डाली और कितनी बाहर आई, हाउ मच यू आर making sample to get irradiated and how much radiation comes out, and we can find out the absorption। वो आगे पढ़ोगे आप, यूवी जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे what does it mean। से फॉर एग्जाम्पल यूवी में 185 से 400 नैनोमीटर है, और विजिबल मैंने एज यूजुअल आई टोल्ड यू 400 से 800 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है। इतनी वेवलेंथ, उसके साथ एनर्जी भी एसोसिएटेड है, इतनी वेवलेंथ आपने डाली और उसमें कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। सो यूवी इज ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Emission spectroscopy, an analytical technique in which emission
of a particle or radiation is dispersed according to some property of the emission and the amount of dispersion is measured. Kitna dispersion hua? That is emission spectroscopy. We radiated, it interacted with the matter, and how much it comes out, it is dispersed, and that is your emission spectroscopy. उसकी example है जैसे atomic emission spectroscopy, very very important tool है atomic emission spectroscopy. एटम को बम्बार्ड करेंगे, फिर देखेंगे और कितने को emit करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है, जैसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये दो प्रिंसिपल है जो मेन इसमें काम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी. या तो वो एब्जॉर्प्शन पे होगा या वो एमिशन पे. हम दोनों को ही स्टडी करेंगे. ठीक है. अब है क्वेश्चन आता है कि इंटरेक्शन कैसे करता है EMR विद मैटर. कुछ तो कारण होगा, कैसे होता है, क्या चीज होती है. तो हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होती है, या वाइब्रेशनल लेवल होती है, या रोटेशनल लेवल है. तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल क्या है, मैटर को करना क्या उसने. या तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस में हेल्प करता है, या वो वाइब्रेशन एक्साइटेशंस में हेल्प करता है, या रोटेशनल एक्साइटेशन में हेल्प करता है. मॉलिक्यूल के पास एटम में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स हैं जो एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेवल्स में रहते हैं. तो एक्साइटमेंट उसने यूवी एब्जॉर्ब करी तो उसने क्या कर दिया, उसको एनर्जी मिल गई, एटम को एनर्जी मिल गई, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल्स. तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस बोलते हैं. ऐसे ही इफ इट इज इन ए वाइब्रेशनल मोड में लेवल्स लाए, हमारे पास एक वाइब्रेशन लेवल है इनिशियल ग्राउंड स्टेट पे जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं से V0, देन इट गोज टू V1 V2 V3. तो दैट एक्साइटेशन आइदर दैट और रोटेशनल. सो इंटरेक्शन ऑफ EMR विद मैटर. हाउ? Electronic energy levels at room temperature, the molecules are in the lowest energy levels, that is E0. When the molecule absorb UV visible light from EMR, one of the outermost bond or lone pair of electron is promoted to the higher energy states such as E1, E2, En, etc. and is called as electronic transition. And the difference is कितना एनर्जी, डेल्टा E is equal to h nu En minus E0. E0 में कम एनर्जी, N में हाईएस्ट एनर्जी, इसमें माइनस करोगे. अब N कैन बी E1, E2, E3 कुछ भी हो सकता है. और कितनी एनर्जी डेल्टा E हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट पर्टिकुलर एक्साइटेशन टू अकर. ये जब हम यूवी पढ़ेंगे या विजिबल पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस का क्या मतलब. दूसरा, वो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में भी काम कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है. These are the less energy levels than the electronic energy levels. The spacing between energy levels are relatively small, that is 0.01 to 10 kilocalories per mole. For example, when IR radiation is absorbed, molecules are excited from one vibration level to another, or it vibrates with higher amplitude. ये वाइब्रेशन पे हो गया. और तीसरा है हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल. दिस एनर्जी लेवल जब हम यूवी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, जब हम IR करते हैं तब हमारे पास वाइब्रेशनल भी एंड रोटेशनल का ज्यादा फायदा हमारे को जब हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वहां यूज होता है. लेकिन IR को समझने के लिए हमारे पास वाइब्रेशन लेवल्स की एनर्जी लेवल्स को हम स्टडी करते हैं. सो द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स आर इवन स्मॉलर देन द वाइब्रेशन लेवल्स रोटेशन में. तो हम ओवरऑल कह सकते हैं डेल्टा E रोटेशनल इज लेस देन डेल्टा E वाइब्रेशनल देन डेल्टा E इलेक्ट्रॉनिक. तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मेन वर्क है वो क्या है, इंटरेक्शन है मैटर का विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, छोटे छोटे फोटॉन्स है, फोटॉन्स उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या चेंजेस लाते हैं, और वो चेंजेस जब हमें समझ आती है, when we understand that electromagnetic radiation on striking a molecule, say if it's a UV, it brings change in its electronic excitation. So how can we make this particular thing applicable to study on the whole UV and visible spectroscopy? Means if electronic levels are getting changed, so what changes it will be bringing and what inference will be drawing from it. So then when we'll be studying in detail UV or in IR, we'll be dealing with it. But to an introductory part, so this module I will try to finish it here up summarizing that what we learned in the basic spectroscopy is it's a basically interaction of matter with electromagnetic spectrum, which is composed of small bundles of small, which is termed as photon. And these photons, they may be either absorbed or they may be either emitted after it interacts with the matter, and they can bring the change in vibration levels, rotational energy levels, and electronic excitations, right? So we'll be continuing this module of UV and visible. This is just an introductory part in the next lecture. So this is a
series, this module number 1, UV visible spectroscopy. So this is part 1. We'll be talking part 2, part 3 as soon as we go on. So till then, bye, study, and we'll meet soon. Thank you.